Hi everyone, welcome back to the video of Acing CR. In this video, we are going to talk about strengthening of the arguments. So what happens when you deal with questions which are based on strengthening the argument? First of all, you have to identify the main point. जैसे ही आपको ये पता पड़ जाता ऑथर हमें मेनली क्या कन्वे करना चाहता है बाय यूजिंग हिज स्टेटेड फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को सपोर्ट करते हुए हम अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेमिस ऐड करते हैं जो ऑथर के ओपिनियन को एक फर्दर सपोर्ट देता है. सो व्हेन वी यूज एन एक्स्ट्रा प्रेमिस टू क्रिएट अ फर्दर सपोर्ट टू द ऑथर्स ओपिनियन, वी आइडियली स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. Right. So it is not only that we use an extra premise, there are certain key points to remember on the basis of which we can actually create a support to the author's opinion. Let's see them one by one. The key points to remember. Number one, it supports the author's opinion by using extra premise. Extra premise का मतलब हुआ आप already stated facts जो आपके passage या paragraph में given है, आप उसको use नहीं करते. Because normally when you deal with the questions based on strengthening the argument, question का language भी कुछ ऐसा होगा, which of the following if true most strengthens the argument. So if true मतलब आपको अपने तरफ से एक further extra premise add करने की जरूरत है, उससे आप अपने author के opinion को support create करोगे. Second, sometimes आप जो assumption लेते हो behind the author's opinion, that also acts as the strengthening factor. And the third one, अगर hidden assumption को ही support करते हुए हमने कोई extra premise add कर लिया, so वो भी strengthening factor ही होगा. So let us understand these points by using some examples. So first of all, number one point, supports the author's opinion by using extra premise. So let's say your argument is, whenever India and Pakistan play against each other in cricket World Cups, India has always defeated Pakistan. Therefore, in this World Cup too, India will beat Pakistan. So अगर मैं इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो यहां पर there is an opinion. ओपिनियन क्या है यहां पर? इंडिया विल बीट पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप टू. और अगर मैं ये कहूं कि इसके पीछे का सपोर्टिंग फैक्ट क्या है, ऑथर क्यों कह रहा है ऐसा, तो इट इज ऑब्वियसली बिकॉज व्हेनेवर इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फेस्ड ईच अदर इन एनी वर्ल्ड कप, इंडिया हैज ऑलवेज डिफीटेड पाकिस्तान. राइट. अब ये तो ऑलरेडी गिवन है, हमें मालूम है कि ऑथर किस बेसिस पे अपना ओपिनियन क्रिएट कर रहा है. अब अगर हमें ये कहा जाए कि यू हैव टू स्ट्रेंथन द ऑथर्स ओपिनियन, तो हमें क्या यूज करना है? एक्स्ट्रा प्रेमिस. सो लेट्स से मैंने आपको ये कहा, for this World Cup, the Indian cricket team is very strong and experienced as compared to the Pakistan's cricket team. तो एक तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि कोई भी वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया एंड पाकिस्तान दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान एंड देयरफॉर इन दिस वर्ल्ड कप टू इंडिया पाकिस्तान को हराएगा. अब इसको फर्दर सपोर्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ये भी दे दिया आपको कि इस वर्ल्ड कप के लिए जो इंडियन टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. सो इट ऑब्वियसली गिव्स अ सपोर्ट टू द ऑथर्स ओपिनियन दैट इस वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान को हराएगा. So this was not mentioned anywhere in the passage or paragraph or the argument given to you. लेकिन ये हमने अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा प्रेमिस, एक्स्ट्रा फैक्ट यूज किया है जिसके बेसिस पर हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑथर के आर्ग्यूमेंट को. राइट. सो दिस इज हाउ वी स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट. दिस इज वन वे. सेकेंड, an assumption underlying the author's opinion can also be considered as a strengthening factor. So let's say आपको argument given है, my brother has eaten the pizza I had ordered from Pizza World. After the pizza disappeared, I had asked him for dinner, to which he replied that he wasn't hungry. तो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर ऑथर का ओपिनियन क्या है? My brother has eaten the pizza. This is what he is trying to prove. और किस बेसिस पे प्रूव कर रहा था ये कह रहा है क्योंकि जब पिज्जा डिसअपियर हो गया उसके बाद मैंने अपने ब्रदर से ये पूछा था whether he wanted dinner, then he said that he wasn't hungry. अब यहां पर मैं अगर अजम्पशन की बात करूं कि ऑथर का बेसिकली अजम्पशन क्या है, यहां जो स्पीकर है वो क्यों ये कह रहा है कि हिज ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा, क्योंकि आफ्टर द पिज्जा डिसअपियर्ड हिज ब्रदर सेड दैट ही वाजंट हंग्री. सो ऑथर इज ऑब्वियसली अज्यूमिंग दैट the pizza is responsible to subside his hunger. So the underlying assumption, the hidden assumption which is taken for granted, जो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो क्या है? वो है a pizza can subside one's hunger, and this also acts as a strengthening factor. So if an assumption is given to you, the underlying assumption behind the author's opinion, if it is given to you in one of the option, it is also taken as the strengthening point. Right. Next point, supports the author's opinion by supporting the hidden assumption.
अब सपोर्ट्स द ऑथर्स ओपिनियन बाय सपोर्टिंग द हिडन अजम्पशन, मैं यहां पर उसी एग्जाम्पल को वापस लेता हूं कि माई ब्रदर हैज ईटन द पिज्जा एंड सो, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉइंट सोचो, जब हम ये कहते हैं कि ऑथर का अंडरलाइंग अजम्पशन क्या था, यहां पर हम उसको भी स्ट्रेंथनिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ये ऑथर के ओपिनियन को क्या कर रहा है, सपोर्ट ही क्रिएट कर रहा है। एंड दिस वाज नॉट स्टेटेड, so I am using an extra fact. Now something which becomes stated, it becomes an extra premise. अभी तक ये क्या था, हिडन था, so वो क्या बन जाता है, assumption. अब मैं इसको स्टेट कर रहा हूं अपने one of the options में, जिसको मैं एज a extra premise यूज करूंगा, so therefore it becomes stated facts and it creates support to the author's opinion. और अगर मैं इसको नेगेट करता इन द सेंस अ पिज्जा कैन नॉट सबसाइड वंस हंगर, तो ऑब्वियसली ऑथर के ओपिनियन पे एक डाउट रेज हो जाता, राइट तो यहां पर हमने क्या किया, जो अंडरलाइंग असम्पशन था उसी को एक्स्ट्रा प्रेमिस बनाते हुए, स्टेटेड फैक्ट बनाते हुए हमने स्ट्रेंथन कर दिया ओपिनियन को। लेकिन जो अंडरलाइंग असम्पशन है एज इट इज, उसको लेने की बजाय अब अगर हम उसको फर्दर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, किसको, अंडरलाइंग असम्पशन को, तो भी ऑथर के ओपिनियन को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा असम्पशन क्या था, अ पिज्जा कैन सबसाइड वंस हंगर एंड दैट इज व्हाई द ऑथर सेड दैट My brother has eaten the pizza. मतलब पिज्जा was responsible for subsiding the brother's hunger and जिसकी वजह से उसकी भूख खत्म हुई है। तो मैं अगर ये प्रूव कर देता हूं कि पिज्जा से ही हुई है, तो ऑब्वियसली आपको एक फर्दर सपोर्ट मिल जाएगा उस assumption को। सो अगर मैं ये कहता हूं my brother had not eaten anything else before the pizza got disappeared, सो अगर मेरे ब्रदर ने कुछ भी नहीं खाया था पिज्जा के डिसअपियर होने से, और ऑथर के पूछने पर उसके ब्रदर ने यह कहा कि ही इज नॉट हंग्री एनी मोर, ही डजंट वॉन्ट डिनर, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से इज नॉट हंग्री, और वो क्या है, द पिज्जा। वाई? क्योंकि ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग एल्स बिफोर द पिज्जा गॉट डिसअपियर्ड। सो यहां पर हमने अपने अजम्पशन को सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जो इनडायरेक्टली ऑथर के ओपिनियन को सपोर्ट दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट. With these points, if you are able to keep these points in mind, it is very easy for you to actually strengthen the argument, right? So we'll take one small example now, wherein we'll see when you are given with options on what grounds you can actually eliminate the options and why the correct option can be considered as the most appropriate one. Let's see. So you are given with an argument, while the Tawang township in Arunachal Pradesh hasn't expanded because the land remains under military occupation, no overt demands for demilitarization exist since it's the army that sustains livelihood. तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो तवांग टाउनशिप है अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहा, क्योंकि वहां का जो लैंड एरिया है वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपाइड है, और कोई वहां पे लोकलाइट्स की तरफ से कोई डिमांड भी नहीं आ रहा कि आप मिलिट्री रूल को हटाओ, क्योंकि वहां पर आर्मी ही रिस्पॉन्सिबल है टू सस्टेन द लाइवलीहुड। अब नेक्स्ट लाइन में ऑथर क्या कह रहा है, अ डेमोक्रेसी दैट रिलाइज ऑन द मिलिट्री फॉर सस्टेनिंग पीपल्स सोशल एंड इकोनॉमिक लाइव्स इज हार्डली अ डेमोक्रेसी। अब यहां पर ऑथर ने एक अपना ओपिनियन क्रिएट कर दिया कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी मिलिट्री के ऊपर रिलाई करती है अपने वहां पे लोकलाइट्स के, वहां के पीपल के सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स को सस्टेन करने के लिए, तो वो एक डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, दैट इज हार्डली अ डेमोक्रेसी। सो यहां पर ऑथर का ये ओपिनियन निकल के आया कि समथिंग विच इज अंडर मिलिट्री रूल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ democracy. Why it is hardly a democracy? Now, which of the following if true strengthens the above argument? So if I can give some extra supporting fact जिसके बेसिस में ये प्रूव कर देता हूं कि why a place under the military rule cannot be considered as a democracy, या why it is hardly a democracy, then that option will be taken as a correct one. So let's see number one. Military cannot effectively guard the borders if it is involved in civil activities. यहां पर Why a place under military rule cannot be considered as a democracy, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है. So this particular option is totally vague. It is not relevant to strengthen the argument. Therefore, first can be eliminated. सेकेंड पे आते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ सिविल अथॉरिटी इन अ प्लेस लाइक तवांग. ये तो ऑलरेडी कह रहा है, स्टेटेड फैक्ट्स है यहां पर कि वहां पर मिलिट्री रूल है, मिलिट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइव्स, इकोनॉमिक लाइव्स एंड सोशल लाइव्स ऑफ द पीपल. तो बेसिकली ये तो यहां पर एक तरीके से इन्फ्रेंस निकल के आया है कि पॉसिबल नहीं है वहां पर सिविल अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना इन अ प्लेस लाइक तवांग. वाई इन अ प्लेस लाइक तवांग, ये नहीं है. मेन मुद्दा क्या था, वाई अ प्लेस अंडर मिलिट्री रूल इज कॉल्ड as
इज हार्डली अ डेमोक्रेसी। तो हमें उस फैक्ट को स्ट्रेंथन करना है, इसलिए बी को भी एलिमिनेट करता हूं मैं। अगर सी पे आए, मिलिट्री टेक्स मेजर्स इन अकॉर्डेंस विथ हाउ इट परसीव्स द थिंग्स बट डज नॉट कंसिडर द नीड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ पीपल विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब देखिए यहां पर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मिलिट्री कोई भी मेजर लेता है, कोई भी एक्शन लेता है, वो उस तरीके से लेगा जिस तरीके से वो परसीव कर रहा है, how it perceives, and it does not consider the needs and aspirants of the people there, or considering the needs and aspirants of the people is considered to be an integral part of democratic rule, but unfortunately military does not do so. So therefore obviously a place which is under the military rule, which is not actually taking into consideration, which is an integral part of democratic rule, cannot be considered as a democracy. So C gives a perfect support टू दी ऑथर्स ओपिनियन कि क्यों कोई जगह अगर मिलिट्री रूल के अंदर है तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ऑप्शन डी देखते हैं, तवांग इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर एंड इज वल्नरेबल टू अटैक्स फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट, हैज नथिंग टू डू विद द डेमोक्रेटिक फ्रंट। सो देयरफॉर यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए क्या था, ऑप्शन सी, ए बी डी कैन बी एलिमिनेटेड ऑन ऑब्वियस ग्राउंड्स एंड सी हैज प्रोवाइडेड द ऑब्वियस सपोर्ट टू द ऑथर्स ओपिनियन। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको यह जरूर क्लियर हो गया होगा हाउ डू वी स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, हम किन ग्राउंड्स पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड विच वन इज टेकन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस और किस बेसिस पर, राइट। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।